अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली 33 अक्टूबर नंबर 2019 फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 1। मैकेनिक्स का क्वेश्चन है बच्चों ये, और इसके अंदर बेसिकली मैं आपको अगर चाहूँ तो आपको इसका इमेज शेयर करा दूँ। कुछ इस तरह का पेपर है ये, और अब हम इसमें स्टार्टअप लेते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को फॉलो कर रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर ऐसा बोला गया कि यू आर सपोज टू सस्पेंड दिस मीटर रूल इन विच देयर इज वन मास अटैच्ड टू वन एंड। तो हमने इसे सिंपल इस तरह से अटैच कर देना है। क्लियरली अटैच हो गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है the distance between the end of the rule and the string loop from which the mass p is suspended is x as shown in figure 1.1. The distance between the same end of the rule and the string loop suspended from the rod of the clamp is y. I'll show you the diagram as well. Position mass p so that x is approximately 30 centimeter. So this is the string loop. I am going to suspend the mass through the end at approximately 30 centimeter. So I won't set it at 30. Instead, I will set it at either 29.5 or 30.5. So counting from here, I set it at 70.5. This side is 0, this side is 100. I set it at 70.0. So from 70.0 till 100, the distance is 29.5 centimeter. Now what to do? We need to balance the rule on this loop. This is what I am doing. See, if randomly you set it here, you need to check the moment first. It's coming down to the right side, means it's clockwise moment. You need to reduce the distance, this one here. Move or shift the rule a bit to the left side. Now the anti-clockwise moment is more, it's running here. Now see, again remove it a bit back to balance it. Again anti-clockwise moment, clockwise moment, still clockwise moment, but very little moment is there. So you can stop here as well, और अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली बैलेंस करें। अदरवाइज आप इस पोजीशन पे आ जाएं जहां पे स्केल बहुत स्लो, डेड स्लो, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहा हो, तो उसे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन समझा जा सकता है। से बहुत स्लो मूव हो रहा है, तो इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन कंसीडर किया जा सकता है। Now see, it's balanced. अच्छा, अब जब इसे हम बैलेंस कर लेते हैं, तो इसको बैलेंस करने के बाद मैं आपको एक्चुअली डायग्राम वापस से दिखाता हूं। See, here, one side has a mass attached to the rule. See, attached mass, this one is attached mass, suspended mass, this is the suspended mass. The distance between the end of the rule and the suspended mass is x. It's clearly mentioned here on the question paper. It's x, and from the end of the rule till the loop by which the rule is suspended is y. क्लियर है बच्चों? तो अब हमने इसका जो डिस्टेंस मेजर किया, ये इस वक्त 70.5 पे है। 100 माइनस 7.5, 70.5 इज 29.5 सेंटीमीटर। मुझे क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर इन दोनों वैल्यूज को नोट कर लेना है।
मैंने x की जगह पे लिखा 29.5 सेंटीमीटर। अब मुझे ये y रीड करना है, 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड द रीडिंग इज 41.6 सेंटीमीटर। मैंने y को 41.6 सेंटीमीटर रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। Part B is change x, adjust the position of the rule until it balances, measure and record x and y, repeat until you have 6 sets of readings, record your results in a table. So first of all we need a table. Let us draw a table first. Serial number x in centimeter, y in centimeter. Do mention the variable with its unit. आप इसको सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं और मीटर में भी ले सकते हैं। My table is ready. अच्छा, कुछ क्वेश्चन में बोला जाता है इंक्रीज एक्स, कुछ में बोला जाता है डिक्रीज एक्स। इस क्वेश्चन में क्लियर मुझे बोला गया है चेंज एक्स। इसका मतलब मैं इसे रिड्यूस भी कर सकता हूं और मैं इसे इंक्रीज भी कर सकता हूं। तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स को सेट करते हैं और उसके ऊपर टेबल बनाएंगे, वैल्यू लेंगे और हमें ये भी पहचानना होगा कि हम मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कहां तक ले जा सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू व्हिच आई सेलेक्ट फॉर द एक्स इज 5.0 centimeters. Already with the column header, no need to mention centimeter with the value in the table. Write it once and leave it. अब मुझे क्या करना है, इस सस्पेंडेड मास को जिसका वैल्यू x से रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड दिस इज व्हाई मैं x को 5 सेंटीमीटर पे सेट करूंगा, बिकॉज़ दिस एंड इज 100, आई नीड टू कीप इट एट 95. Here it is at 95. This distance is x, which is 95. अब मुझे इसे बैलेंस करना है वापस से। सी क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ जाएगा, हम इसका लेंथ चेंज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ गया, वापस से कहीं बीच में हमें ऐसी जगह पे रुकना होगा कि जहां पे ये बैलेंस हो जाए। क्लॉकवाइज मूवमेंट थोड़ा सा शिफ्ट करें, जिधर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो आप इस डिस्टेंस को कम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ेगा तो आप उस डिस्टेंस को कम करेंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट और थोड़ा सा कम कर देते हैं डिस्टेंस को, स्टिल क्लॉकवाइज मूवमेंट और थोड़ा सा कम कर देते हैं डिस्टेंस को। See it's balanced. So x is 5 centimeter there, y is 48.9 centimeter. I'll change x. अब मैं इसकी दूसरी वैल्यू ले लेता हूं। पहले मैं 5 सेंटीमीटर गैप रखा, अब मैं इसको ले आया हूं 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस कॉर्नर। I will set it at 85 because 100 minus 85 is 15 centimeter. The new value of x is 15 centimeter. और अब 15 सेंटीमीटर को ऊपर लाऊंगा तो हमने देखा इसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ गया है, इसका मतलब इस डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ गया, वापस से डिस्टेंस को कम करेंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट और थोड़ा सा कम कर देते हैं राइट साइड के डिस्टेंस को। सी इट्स बैलेंस। तो हमारे पास रीडिंग है 46.0, 15.0, 46.0। लेट्स टेक न्यू वैल्यू ऑफ x। अब हम इसके 25 से इसे If I set it at 65, मैं इसे 65 पे लेके आ रहा हूं तो मेरे पास जो डिस्टेंस बन गया 100 minus 65 is 35 सेंटीमीटर। और अब हमें इसे वापस सेट करना होगा।
क्लॉकवाइज मोमेंट, डिस्टेंस कम करना होगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, डिस्टेंस यहां पे कम करना होगा। See, the rule is balanced. 65, 100 by 65, 35.0 सेंटीमीटर। और x का वैल्यू यूज कर लेते हैं। y का वैल्यू दिस इज 40। I guess I made some errors. What was the error? Y is this distance and x is this distance. So 100 minus 46 is the value of y. और पहले मैंने इसको 46 यहाँ पे रीच किया था। बेसिकली 100 माइनस 46 54 वाई का वैल्यू। और उससे पहले मैंने 48.9 रीड किया था, तो जो 48.9 है बेसिकली वो ये डिस्टेंस होना चाहिए 100 माइनस 48.9 48.9 100 माइनस 48.9 48.9 49 51.1। अब हम कुछ सही कर रहे हैं। तो दिस इज 60 एंड दिस इज 35। तीसरा वैल्यू आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं अगला वैल्यू इसका सेलेक्ट कर लूं 40 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस 40 रखना है तो मैं इसको 100 से यहां पे 60 पे लाकर रख लेता हूं। 100 minus 60 is 40, this is 60। अगर यहाँ पे आ जाएगा तो अब इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ गया। अब हम इसको वापस से डिस्टेंस कम कर देते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ गया, बहुत थोड़ा सा रीसेट करना है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अभी भी इसका ज्यादा है, थोड़ा सा और कम कर देते हैं। या बैलेंस 60 का मतलब 100 by 60 40 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ x। लेट अस रीड y। दिस इज 38.5। सो 100 minus 38.5 इट इज 2.5। 100 minus 38.5 दिस इज 61.5 सेंटीमीटर। अब हम इसको उठा के 50 पे ले आते हैं। तो जब हम 50 पे ले आए तो x का वैल्यू 50 हो गया और y का नया वैल्यू ले लेते हैं। बैलेंस, क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ रहा है। It's balanced. 50.0 is the value of x। और इसी तरह y का वैल्यू यूज कर लेते हैं। This is 35.5। 100 minus 35.5 40 पे हो गया 60 61 62 63 64 64.5। अब हम ले रहे हैं लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू इज टू फुलफिल द रेंज। अब एग्जामिनर से एक्सपेक्ट करता है कि आप इस x का वैल्यू को मैक्सिमम कहां ले जा सकते हैं और मिनिमम कहां ले जा सकते हैं। मिनिमम में 5% कर लिया था। मैक्सिमम करने के लिए मैं इसको एडजस्ट करता हूं। मैंने इसको अपने तौर पे 30 पे एडजस्ट किया। मैंने चाहा कि अगर मैं इसे 30 पे एडजस्ट करूं तो क्या 70 सेंटीमीटर पे रेंज बनाई जा सकती है। लेट्स चेक। हियर आई पुट इट एट 30 और जब मैं 30 पे रखा तो क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है। मैंने डिस्टेंस को कम किया पिवट से। अभी भी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है। मैंने और क्लोज किया 29.5 पे से रखा। अभी भी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है। मैं थोड़ा सा और आगे करके देखता हूं अगर ये बैलेंस हो जाए तो। इट बैलेंस। लेकिन मैंने चाहा कि अगर 30 पे बैलेंस हो गया एंड द डिफरेंस इज टू क्लोज बिटवीन बोथ द लूप्स, क्या मैं इसको अगर 29 पे रखूं और मेरा x का वैल्यू 71 बन जाए तो क्या पॉसिबल होगा। मैं इसको ट्राई करता हूं। मैं इसे लाया 29 पे और मैंने इस लूप को वापस से रीसेट किया।
और अब ये दोनों लूप्स ऑलमोस्ट एक दूसरे से टच हो चुके हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसके डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, लूप को मैश के इधर लेके जाना पड़ेगा, विच इज नॉट करेक्ट वे। तो आपको ये लूप और ये वाला लूप इन दोनों को डिफरेंट साइज पे रखना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 30 ली जा सकती है, इससे ज्यादा हम इसकी वैल्यू को रिड्यूस नहीं कर सकते। See, when x is 30, y is 29.5, तो reading on the scale। तो अगर ये 30 है, इसका मतलब 100 minus 30, 70.0 सेंटीमीटर with the value of x, और यहाँ पे आ रहा है 30 मतलब 70.5, it's 29.5, so this is 70.5। ये मेरे पास वैल्यूज आ गए हैं। अच्छा जनाब, इन तमाम वैल्यूज के बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट इज, अब इसे डिसमेंटल कर देते हैं। द प्रैक्टिकल इज डन, वी हैव टेकन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ये तमाम का तमाम रिजल्ट आपने टेबल एज इट इज इस वाली स्पेस पे ड्रॉ कर लेना है, जिसके अंदर ये स्पेस आपको दिया गया है। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। प्लॉट ग्राफ ऑफ y ऑन द y एक्सिस अगेंस्ट ऑन द x ऑन द x एक्सिस। अब आप क्या कीजिएगा, बच्चों जब भी आपको ग्राफ शीट मिलेगा, जब भी आपको 8th लेवल के पेपर 3 के अंदर ग्राफ शीट मिलेगा, याद रखिएगा उसके अंदर हमेशा 8 कॉलम्स होंगे। और जो हमें y एक्सिस का स्प्रेड मिलेगा, इसमें हमेशा आपके पास 12 रोज होंगी। ये कांस्टेंट फॉर्मेट है इस ग्राफ पेपर का। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि इन्होंने ग्राफ प्लॉट करने का, प्लॉट ग्राफ ऑफ y ऑन द y एक्सिस एंड x ऑन द x एक्सिस। तो मैंने इस ग्राफ पेपर पे y को यहाँ लेबल करना है, चाहे तो इसके यूनिट के साथ लेबल कर दीजिए, y इज इन cm और x इज इन cm। आपने दोनों चीजों को लेबल कर लिया। लेबल करने के बाद व्हाट द नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट इज plot all the 6 points on this graph paper. See, x on the x-axis. What is the minimum value of x? 50. This 50 is the minimum value, and 70 is the maximum value. अब आपने क्या करना है, आपने 50 से 70 तक का कंप्लीट स्प्रेड आपको चाहिए इस ग्राफ पेपर के ऊपर। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 से स्टार्ट करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, मेरा स्प्रेड 40 तक जाएगा, जो कि बेहतर नहीं है। हम इसको अगर 5 की जगह 10 लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड देन 70, तो आप देखिए कि मेरा बहुत अच्छा स्प्रेड है। ग्राफ कैसे किन डेटा पे प्लॉट किए जाते हैं, उसके क्या खास पॉइंट्स होते हैं, इसके लिए इंशाल्लाह मैं कुछ छोटी छोटी सी वीडियोस लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको इसके ऊपर कंप्लीट कमांड हासिल हो जाए। वैसे जो स्टेटमेंट मशहूर है ग्राफ पेपर के लिए, दैट इज एटलीस्ट 50% शुड बी कवर्ड। एटलीस्ट 50% का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आपका एक पॉइंट पहले कॉलम में आ गया, लेट अस सपोज पहले कॉलम में अगर आपका एक पॉइंट आ गया, तो आपका आखिरी पॉइंट कौन से कॉलम में जा रहा है? लेट अस सपोज आखिरी पॉइंट मेरा इस कॉलम में आया। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट कॉलम में पॉइंट आ गया, फर्स्ट कॉलम काउंट होगा। लास्ट कॉलम आपका ये है, यहां तक तमाम कॉलम्स काउंट होंगे, 1 2 3
4 5। इसका मतलब ये है कि 5 कॉलम में मेरा डेटा है, 8 में से 5 5 on 8 is more than 50%। अच्छा, गलती क्या हो सकती है? What can be the error? एक बच्चे का पॉइंट पहला यहाँ पे आया और आखिरी पॉइंट यहाँ पे आया, तो हम बेसिकली नंबरिंग काउंट नहीं करते, हम ये देखते हैं कि पहले पॉइंट कौन से कॉलम में है और आखिरी पॉइंट कौन से कॉलम में है, उन तमाम कॉलम्स को काउंट कर लिया जाएगा। इफ दे आर either 4 or more than 4 mean 50% covered or more than 50% covered. If they remain under 4 columns it is less than 50%, you will lose 1 mark। यहाँ पे पहले कॉलम में डेटा है दूसरे से तीसरे तक, मतलब इसके बीच में भी डेटा होगा हमारा, पहला और लास्ट काउंट होता है, तो इसमें आपके पास 3 है, 3 on 8 is wrong, तो ये सही तसव्वुर नहीं किया जाएगा। और यही चीज y एक्सिस पे भी अप्लाई होती है। अच्छा, अब हम y एक्सिस को प्लॉट कर लेते हैं। y एक्सिस का मिनिमम वैल्यू है मेरे पास 51.1 और इसका मैक्सिमम वैल्यू है 70.5। मुझे ये दोनों वैल्यूज इस ग्राफ में ऊपर चाहिए, 50 से 70। अगर मैं स्टार्ट यहां से 50 पे कर लेता हूं, क्योंकि फॉल्स ओरिजिन अलाउड है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू स्टार्ट द graph with 0 for the x and 0 for the y. You may start your graph with the suitable values, that's called the false origin. False origin पे ग्राफ स्टार्ट किया जा सकता है और पूरा ग्राफ बनाया जा सकता है। 50, अगर मैं इसे 60 बोलूं और इसे 70 बोल दूं, तो 70.5 मेरा डेटा मैक्सिमम इस वाले रो में जाएगा। 1 2 3 4 5 मेरा डेटा 5 रोज के अंदर आ रहा है, जो कि 50% से कम है। आपको कम से कम 6 रोज के अंदर अपना डेटा लेके जाना है, तो मेरा ये स्केल सिलेक्शन सही नहीं है, इट्स रॉन्ग। अब हम क्या करते हैं कि अगर मैंने इसे 60 बोला था, तो अब मैं इसे एक बॉक्स छोड़ के 50 देन इट इज 55, द नेक्स्ट इज 60 65 70 सॉरी, ये मैंने वही वाला स्केल सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसके बाद एक के बाद ऑल्टरनेटिवली 55 बोलूं और उसके बाद 60 बोलूं और फिर 65 बोलूं और फिर इसे 70 बोलूं और इसे 75 बोलूं, अब हम देखते हैं। फर्स्ट इज 50 51.1, दिस इज 50, दिस इज 55.5, दिस इज 52.5। तो हम 50 और 52.5 के बीच में कहीं रहेंगे। पहला पॉइंट मेरा इस वाले कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम है, बिकॉज 5 इधर बीच में 5 होगा, तो 5 और यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट 70.5 70 पे एज इट इज इसी वाली लाइन के ऊपर 70.5, ये 70 है तो बच्चों ये 72.5 है। इसका मतलब बीच में यहाँ पे कहीं मेरा डेटा आएगा और एक डेटा मेरा यहाँ पे आएगा। तो अब ये 2 पॉइंट्स आ गए, इन 2 पॉइंट्स के बीच में तमाम पॉइंट्स आ जाएंगे। आप प्लॉट कर लीजिएगा, डिटेल वीडियो एक और बना देंगे, ग्राफ के ऊपर लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करना है, पॉइंट सब कैसे कैलकुलेट करना है, इक्वेशन में कैसे वैल्यूज को प्लेस करना है, ये तमाम चीजें आने वाली वीडियोस के अंदर आप लाजमी देखेंगे। अभी सिर्फ कवरेज चेक कर लेते हैं, पहले कॉलम में डेटा और लास्ट कॉलम तक डेटा। इसका मतलब एक्स एक्सिस मेरा यहां से यहां तक कवर्ड है, व्हिच इज मोर देन 4 कॉलम्स, बेहतरीन कवरेज। वाई एक्सिस को चेक कर लेते हैं, पहली रो में डेटा है और इसी तरह यहां तक की मेरी रोज काउंट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज में डेटा है, व्हिच इज 75%। 9 on 12 is टाइम्स 100 is 75%। इस तरीके से आप इसका ग्राफ प्लॉट कीजिएगा इन बेस्ट ऑफ टाइम, आगे इंशाल्लाह किसी वीडियो में, और इसके मजीद कैलकुलेशन के लिए हम दूसरी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।